Today we are going to discuss about real numbers, chapter number 1, standard 10. Okay. तो ये जो real numbers है, that is set of number actually, and there are various kind of sets of numbers. Those are natural number. Everyone knows that. Natural number is indicated by n, and that set is written in curly brackets starting from 1, 2, 3, 4, 5 up to the infinity. Okay. Then there is second number set, that is whole number, which denotes by W, starts from 0, then 1, 2, 3, 4, 5 up to the infinity. Whole number consists of 0 and other than are natural numbers. That means we can say that whole the natural number that has been covered in what? Whole number. All the natural numbers are covered in whole number. Then next one, that is integer number, that is Z. Integer numbers also consist 3 kind of values. First one, that is 0. Before than the 0, negatives and positive. Negative integers and positive integers. So we can say that Z can be written as minus infinity to 0, then 1, 2, 3, 4 up to the plus infinity. That is integer number set. Now after that, that is rational number, and second is irrational number. Rational number, that is always in form of P by Q. That is always in form of P by Q. That means it always consists what? Numerator as well as the denominator. That is fractional value actually. Rational number, that is what? Fractional number. What is the condition right over here? As we know, denominator should not equal to 0. So where Q should not equal to 0. Q 0 होना नहीं चाहिए. लेकिन रेशनल नंबर के अंदर भी 2 पार्ट आते हैं. If P by Q form is which kind of? If P by Q form is terminating decimal expansion, और दूसरा यहाँ पे आएगा if P by Q is recurring type. कैसा? Recurring type, non-terminating decimal expansion. Okay. Terminating decimal expansion का मतलब क्या होगा? अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो 1.2, that is terminating decimal expansion. If we are talking about 10, if we are talking about 7 upon 5, so that is also can be written as 14 divided by 10. So here answer will be 1.4. As we can see, after the decimal expansion, there are fixed numbers of digit. यहाँ पे कितने डिजिट है? एक डिजिट है. यहाँ पे कितने डिजिट है? एक डिजिट है. So we can say that is
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, यानी कि पीछे के डेसिमल एक्सपांशन के बाद डेसिमल की जो डिजिट्स है दोज आर फिक्स. So that is why that is terminating decimal expansion, and if that is terminating decimal expansion, that has been considered as rational number. For the rational number, second condition is if p by q is, p by q का जो फॉर्म है वो रिकरिंग टाइप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होना चाहिए. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जैसे फिक्स वैल्यू मिल रही है आफ्टर द डेसिमल एक्सपांशन, वो फिक्स वैल्यू नहीं होगी, that will up to the infinite. Is that clear? Suppose कि I am taking an example of 10 by 3. As we know, answer will be 3.3333 and that will be continue up to the infinite. Here we can see that this has become non-terminating a decimal expansion. But in the non-terminating decimal expansion, the fixed values are repeated right over here after the decimal expansion. यानी कि 3 जो है यहाँ पे 3 जो है that is repeated for the infinite times. So we can make it recurred. Recurred का मतलब क्या होगा, उसको सीमित बनाना. तो ये जो 33333 जो है वो सीमित हो जाएगा एक 3 के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे this 3 is repeated up to the infinite. We are going to check only after the decimal expansion. So this has become 3.3 bar. Okay. Similarly, if we have the value 1.24343 dot. So as you can see, 43 is repeated for the infinite times after decimal expansion. So this is non-terminating type. But 43 is recurred. So that is why it has become 1.243 bar. So this is known as recurring type non-terminating decimal expansion, and that is also covered in which rational number. Is that clear? Now the turn is of irrational number. What does it mean by the irrational number? So जो numbers rational numbers के अंदर नहीं आते हैं, those are considered as irrational number. So always जो value, always whichever numbers are non-recurring type, non-terminating, always whichever number has non-recurring, non-terminating decimal expansion. Clear? So that is known as what? Irrational numbers. Examples given are 1.23. अब यहाँ पे 2 आया, अगर 2 आता है और हमें रिकरिंग बनाना है तो देयर मस्ट बी 3 बिहाइंड दैट. और एक बार 3 आ गया और ये रिपीट हो गया तो दैट विल बिकम द रिकरिंग टाइप नॉन टर्मिनेटिंग. बट हमें चाहिए व्हाट? इरेशनल, जिसके लिए कंडीशन है नॉन रिकरिंग. दैट मीन्स नंबर शुड नॉट रिपीट कंटिन्यूअसली. सो डिजिट शुड नॉट रिपीट कंटिन्यूअसली. सो 3 के बाद यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 4, मतलब कि 2 3 2 4 ऐसे में बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन all the numbers are not going to repeat right over here. So we can say that that is non-recurring type, non-terminating type decimal expansion. Another example is given 1.0100100001 dot. As we can see in this series of the digits, 1 0, then 2 0, 3 zeros. That means not a single digit is repeated continuously. Not a single digit. मतलब no digit has been repeated there. So that is why that is non-recurring, non-terminating type decimal expansion. Now terminating हो या non-terminating हो या फिर टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग हो,
ये सब मिला के that will become what? Real numbers. So as we can see, real number always consist natural number. नेचुरल नंबर जो रियल नंबर्स में आ जाएगा, होल नंबर वो भी रियल नंबर्स में आएगा, देन द इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब ये होगा कि दैट डजंट हैव द पॉइंट्स और द फ्रैक्शनल वैल्यूज, यानी कि डेसिमल वाली कोई चीज वहां पे नहीं आएगी, फ्रैक्शन वाली चीज नहीं आएगी, तो वी कैन से दैट दैट इज इंटीजर नंबर्स, देन रियल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. So these are the parts of what? Real numbers. Irrational number के अंदर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा पाई का. पाई जो है that is 3.1 for dot 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 dot. Another example जो है that is exponent e. Exponent e. e की जो वैल्यू है that is 2.718 dot 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 चलती जाती है. तो these are the irrational numbers. Similarly, उसके पास कोई रूट वाली वैल्यू है, √2, √3, √7. These are the irrational numbers. जिसका अंडर रूट नहीं निकल रहा है, those numbers are considered as irrational. अगर हम बात करें √4 की, तो √4 that is perfect square. So answer will be 2. So that is considered in which one? Integer numbers, whole number, natural number. So that is in division of rational number. अब rational number जो है वहां पे लिखा हुआ है p by q फॉर्म के अंदर, तो ये एक जो है 1 जो है that is rational number or not, ये हमको जानना है. तो यहाँ पे 1 that is equal to 1 by 1. तो we can say that p is equal to क्या हो गया 1 और q is equal to क्या हो गया 1. So denominator जो है और numerator जो है both are the from the natural numbers, whole numbers, integers. Okay, that is the basic condition. एक और condition मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा. For the rational number q is not equal to 0 हमने लिख लिया है, ठीक है ना. Now q is not equal to 0, so अगर मैं p by q फॉर्म के अंदर ये 1 divided by -3 लिखता हूँ, तो at the end we will have -1 by 3. हम जनरली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले को साइन को न्यूमरेटर में कंसीडर करते हैं. अगर न्यूमरेटर में गया तो हम जानते हैं कि -1 is from z and 3 is from, पर्टिकुलरली बताया जाए तो नेचुरल नंबर. अब मैं बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में w ले लेता हूं. अगर मैं डिनोमिनेटर में w लेता हूं तो w कंसिस्ट 0, w के पास 0 है, और हमने बोला कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो डिनोमिनेटर में अगर हमने w रख दिया तो वहां पे डिनोमिनेटर में 0 लेने के चांसेस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. तो w हम नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए. अगर w हम 0 नहीं ले सकते तो फिर z भी नहीं ले सकते, बिकॉज z कंसिस्ट 0, z के पास 0 है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो कंपल्सरी ये जो q है दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये कंपल्सरी हो गया कि q जो है वो कहां से हो जाए, नेचुरल नंबर से, बिकॉज q ही एक अकेला m ही एक अकेला ऐसा है नेचुरल नंबर सेट कि जिसके पास 0 नहीं है. ठीक है. उसके बाद p जो है, अभी इसको हमने नेगेटिव बनाया, वैसे ही p by q को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव वैल्यू भी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए. और अगर p by q को हमें 0 बनाना है, डिनोमिनेटर में कुछ भी चलेगा लेकिन न्यूमरेटर में 0 है तो 0 भी चाहिए. मतलब कि रेशनल नंबर जो है उसके अंदर p जो है वो नेगेटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए और 0 भी होना चाहिए, और वो तीनों तो कंसिस्ट करते ही z. तो p must be from z. So these are the basic condition for the rational number. Is that clear?
और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला के हमारे पास आ जाते हैं रियल नंबर्स। नाउ दैट वाज द बेसिक एक्चुअली। ओके, इसकी एक्स्ट्रा कंडीशंस जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आने वाली है। तो आई एम लीविंग दिस टॉपिक राइट ओवर हियर। नंबर सेट्स खत्म हो गए। नाउ टुवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर बुक, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो डिविजिबिलिटी के रूल्स दिखाता है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है? डिविजिबिलिटी के रूल दिखाता है। अब एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम दैट मीन्स पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स, मैथमेटिकल स्टेप्स, जिसकी वजह से पूरा कोई जो सीक्वेंस है वो आगे बढ़ता जाए। तो एल्गोरिथम इज a particular type of steps of mathematics जो अपने कोई particular example को आगे बढ़ाता हो। Now here is the division algorithm, जिसके अंदर क्या कहा गया है कि for any two integers a and b we have two integers for any two integers a and b, यानी कि हमारे पास दो इंटीजर है, कौन से? a and b, जिसके लिए we have two integers q and r। q and r हो गए हमारे पास in such a way that ऐसे तरीके से हमको Q and R मिलेंगे जहां पे A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BQ प्लस R। दैट इज एक्चुअली वेरी मच अवेयर बाय द स्टूडेंट्स, ये सब जानते हैं, लेकिन लिखने का फॉर्मेशन कैसे आया? बिकॉज ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है दैट इज नथिंग बट द डिविजिबिलिटी। तो ये a है अपने पास, a को हम डिवाइड कर रहे हैं b से, a को हम b से जब डिवाइड कर रहे हैं वी विल गेट द आंसर q एंड आफ्टर द सब्ट्रैक्शन एट द एंड वी विल हैव द रिमाइंडर। इज दैट क्लियर? सो a इज व्हाट? डिविडेंड, b इज व्हाट? डिविजर, q is what? Quotient, and r is what? Remainder. So that is basic divisibility, and this is also the division algorithm, nothing else. So where we can see that कि जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं, हमने a को b से डिवाइड किया, प्राइम कंडीशन इज व्हाट? denominator should not equal to 0. So where b is not equal to 0, that is prime condition. अब दूसरी चीज, r के लिए हमको कुछ चाहिए ना, r के लिए हमको कुछ चाहिए। q is the quotient, quotient का आंसर कुछ भी आ सकता है, लेकिन रिमाइंडर की एक प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जैसे कि we are dividing by 3 is divided by 3 ones are 3, remainder is what? 0. Here 4 is divided by 3 ones are 3, remainder is 1. 5 is divided by 3 twos are 3 ones are 3, remainder is 2. 6 divided by 3 twos are 6, remainder is what? 0. So as we can see that if we multiply 3 का टेबल बोला जाए, 3 ones are 3 twos are 6, 3 threes are 9, etc. तो for the 6 we will get remainder what? 0. So that means remainder जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहा है,
और बाकी रिमाइंडर जो देखा जाए 0 1 2 0 1 2 दैट विल बी कंटिन्यू लाइक दिस इफ वी डिवाइड बाय 3। तो टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, क्योंकि वी आर डिवाइडिंग बाय व्हाट? 3। अगर b की वैल्यू 3 है तो हमको टोटल रिमाइंडर्स मिलेंगे 3, और वो टोटल रिमाइंडर्स कितने कौन कौन से होंगे? स्टार्टिंग विद द 0 अप टू b, लेकिन b को कंसीडर नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे b इक्वल टू 3 है तो मुझे r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 2 मिला, और वैसे ही फिर से r इक्वल टू 0 आ गया। तो आई हैव टोटल 1 2 एंड 3 रिमाइंडर्स। ओके, बाकी तो फिर से रिपीट होने वाला है। तो b से छोटा होगा 0 1 एंड 2, 3 तो नहीं आएगा, इसका मतलब कि b से क्या होगा? छोटा होगा। दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम, और इसका रूल हो गया जिसमें b से रिमाइंडर जो होगा वो डिवीजर से छोटा होगा, डिवीजर कभी बन सकता नहीं है। और अगर डिवीजर के जितना होना चाहता है तो दैट विल बिकम डायरेक्टली इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन, दिस इज द प्राइमरी कंडीशंस। ओके, नाउ मैं इसी को 0 लेस देन और इक्वल टू लेस देन b, अब ये यहाँ पे ये b जो है डिवाइड करने के लिए अपने ऑलवेज क्या लेते हैं? पॉजिटिव। लेकिन सपोज नेगेटिव लिया, पॉजिटिव ही लेना है, लेकिन b की वैल्यू जो मैंने सिर्फ यहाँ पे बोला कि नॉट इक्वल टू 0, तो नेगेटिव तो हो सकती है ना। लेकिन जब भी रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो उसके लिए b को पॉजिटिव बनाना जरूरी है डिनोमिनेटर में। एज वी हैव सीन कि अगर मैं n या w या z तीनों में से कुछ लेना चाहूं तो रिमाइंडर कहां से होना चाहिए? कंपलसरी फ्रॉम n। रिमाइंडर कहां से होना चाहिए? नेचुरल नंबर के अंदर से होना चाहिए, w और z में से नहीं होना चाहिए। सो दैट मींस दैट b मस्ट बी व्हाट? पॉजिटिव ऑलवेज। तो पॉजिटिव बनाने के लिए डाल दिया मोड। अब यही को लेस देन मैं मोड डिवाइडेड बाय 2 प्लस मोड डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, ये 0, अब ये b/2 जो है उठा के मैं इस साइड पे ले लिया, तो मोड b/2 जो है वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो उसके बाद r, और अपने पास मोड b/2 पॉजिटिव तो है ही। ठीक है, ये b/2 इस साइड पे आया तो नेगेटिव b/2 और पॉजिटिव b/2 के बीच में 0 कहीं दब जाएगा। नेगेटिव b/2 और पॉजिटिव b/2 के बीच में 0 कहीं दब जाएगा, और ऐसा हो गया तो जो यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, लेस देन और इक्वल टू की साइन है, दैट विल डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट? लेस देन, क्योंकि यहाँ पे माइनस b/2 में इक्वल टू माइनस b/2 हम लेने वाले नहीं है। तो डिविजिबिलिटी का एक और रूल अपने पास आ गया, एंड दैट इज 1/2 mod b लेस देन r लेस देन 1/2 mod b। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। डिवीजन एल्गोरिथम बस इतना ही था, ठीक है। बट वी आर नाउ गोइंग टू यूक्लिड्स लेमा डिवीजन। We are now going to what? Euclid's division lemma। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेमा का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे एल्गोरिदम का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेप्स, वैसे ही लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा दैट मीन्स ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा दैट मीन्स व्हाट? Whichever statement is proven already and useful for to prove the another statements, that is known as lemma. Okay, so Euclid's division lemma is basically the version of division algorithm, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा चेंज यहाँ पर है। For any two integers है ना, वहां पे सिर्फ लिखना है for any two positive integers, for any two positive integers a and
B, we have integers Q and R, बट यहां पे जो इंटीजर्स आएंगे, अगर यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बस इतना ही फर्क है। तो इंटीजर्स की बात हम करेंगे यहां पर भी, लेकिन वी हैव टू नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स वी कैन से दैट इज आइदर बी जीरो और पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स Q and R such that A is equal to BQ plus R. तो दिस इज प्रूवन स्टेटमेंट, और वहां पे भी लास्ट में लेमा स्टेटमेंट तो क्या आया, A is equal to BQ plus R, where सिमिलर कंडीशन B is not equal to 0। अब यहाँ पे B के लिए पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है तो कंपलसरी R जो है वहां पे मोड डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो टू इंटीजर्स था, नेगेटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, इसीलिए यहाँ पे मोड डाला। अब यहाँ पे तो कंपलसरी पॉजिटिव ले लिया है तो यहाँ पे मोड डालने की जरूरत नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये वाले स्टेटमेंट के लिए ऐसे b/2 वाला फॉर्मेशन हम नहीं लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे मोड है तो ये पॉसिबल है, और a एंड b के लिए हम इंटीजर्स ले रहे हैं, ठीक है। a एंड b नेगेटिव हो सकते हैं, इसीलिए नेगेटिव फॉर्मेशन में जा सकता है। यहाँ पे कंपलसरी पॉजिटिव फॉर्मेशन है तो कंपलसरी 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। सो दिस कंडीशन शुड नॉट अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दैट इज कंपलसरी, शुड नॉट अप्लाई, अप्लाई करना ही नहीं चाहिए, इज दैट क्लियर, नॉट एप्लीकेबल एक्चुअली। Now this lemma statement is useful for to find out the HCF of given numbers. How is it? कि अगर हम यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल गिवन कि मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं 23 and 5 or 23 and let's take it 6, 23 and 6, हम डायरेक्टली जानते हैं कि HCF of 23 and 6 both are what? 1. HCF क्या? क्योंकि 23 जो है वो प्राइम नंबर है, दो टाइप्स ऑफ नंबर आ जाए, एक तो प्राइम नंबर है और दूसरे नंबर्स जो है वो कॉम्पोजाइट नंबर्स है। मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सरसाइज, आगे वाली एक्सरसाइज जो आती है उसमें दूंगा। 23 and 6, तो ये 23 प्राइम नंबर है, इफ दैट इज प्राइम नंबर तो एज वी नो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इसको प्रूव करना है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेप्स ऐसे हैं कि फॉर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A must be greater than what? B। हाँ, तो एक कंडीशन यहाँ पे भी लिखने देंगे, A must be greater than B। A जो है वो B से बड़ा होना चाहिए, या फिर हम डिवीजन निकाल रहे हैं तो उसके इक्वल टू भी हो सकता है। तो A जो है वो बड़ा होना चाहिए या फिर B के जितना होना चाहिए कंपलसरी, तभी जाके ये यूक्लिड डिवीजन लेमा अब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए A ग्रेटर देन और इक्वल टू B है, तो that is why A is considered as 23 and B is considered as 6. Now, according to A is equal to BQ plus R, तो मैं यहाँ पे A की वैल्यू डालूंगा 23, B की वैल्यू डालूंगा 6। अब मैं जब 23 और 6 ले रहा हूँ तब मुझे यहाँ पे 23 मस्ट बी डिविजिबल बाय व्हाट, 6 होना चाहिए। नहीं आए तो इसके अंदर वैल्यूज डालते जानी है। 6 3 18, रिमाइंडर इज व्हाट 5, तो 6 3 18, रिमाइंडर बच गया 5। अब यहाँ पे एक चीज हम चेक करें तो पता चलेगा HCF of AB is equal to 23 और 6 का HCF कितना है 1।
और अगर हम HCF देखें ऑफ B एंड R, B जो है वो क्या है 6 है और R जो है वो 5 है, तो उसका आंसर भी क्या है 1। तो एज यू कैन सी वी कैन से दैट HCF ऑफ AB that is equal to what HCF of B and R। यहाँ पे दोनों के HCF क्या हो गए इक्वल हो गए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A की जगह पे B ले लो और B की जगह पे क्या ले लो R ले लो। A की जगह पे क्या लेना है B की जगह पे R। तो अपना स्टेटमेंट आगे चलता जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए ये जो है दैट हैज बिकम द लेमा स्टेटमेंट। अब जो नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा उसके लिए ये बन गया लेमा स्टेटमेंट। ये अपना A था, ये अपना B था। B को हमें क्या बनाना है A बनाना है और R को हमें क्या बनाना है B बनाना है और हमें फाइंड करना है Q एंड R। तो ये रहा आपका 5 जो हो गया डिवीजन। और मैं यहाँ पे नया डिवीजन ले रहा हूँ जिसमें डिविडेंड जो होगा A की वैल्यू होगी वो 6। तो ये बन गया आपका 6 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, आंसर विल बी 1। तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर बन गया 1। इसके लिए ये वाला लेमा था। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए ये बन जाएगा लेमा। तो ये आएगा अपना 5, आगे बन आएगा R, 1 5 जा 5 और रिमाइंडर बचा 0। अब जब भी कभी रिमाइंडर 0 आता है, जब भी कभी रिमाइंडर 0 आता है तब अपना डिवीजर जो है क्या डिवीजर ये 0 आया, तब जाके अपना जो डिवीजर है लास्ट एल्गोरिथम, ये जो 1 2 3 स्टेप बने उसको लेंथ एल्गोरिथम बोलेंगे। और जहां पे 0 आया, 0 के हिसाब से जो डिवीजर मिला that divisor will become your HCF. So here it will become HCF of AB is equal to HCF। A की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या थी 23 और B की वैल्यू अपने पास थी 6। दोनों का HCF डिवीजर में कितना आया 1। तो मैंने बोला था डायरेक्टली भी आज जानते हैं अपने, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है that is useful to find what HCF of steps। एंड यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा ये सब स्टेप मिला के बने क्या एल्गोरिथम। और ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सेकंड वाले के लिए लेमा बनता है, सेकंड स्टेप के थर्ड स्टेप के लिए सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बनता है लेमा बनता है। तो प्रूवन स्टेटमेंट यानी कि ऊपर वाला स्टेटमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। नाउ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज फिनिश्ड। Now, for the Euclid's division lemma, there are some conditions मैं जो यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि according to the values of B, we will get different kinds of R और R के लिए हमको क्या मिलेगा values of A। जैसे कि हमारे पास B की वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, तो जहाँ पे R मिलने के चांसेस क्या है 0 या 0 से बड़े या फिर up to the B। According to that, we will get A is equal to BQ plus R. Clear? So here there will be the table. If we have B equal to 1, तो R की वैल्यूज क्या हो सकती है? एक से छोटी कितनी हो गई? R equal to 0. अब B की वैल्यू 1 और R equal to 0 दोनों इसमें डाल लो, तो A is equal to 1 into Q plus 0. 1 into Q plus 0. So it will become A is equal to 1 Q. Clear? Similarly, if B is equal to 2, तो R की वैल्यू जो है 0 हो सकती है या फिर R की वैल्यू 1 हो सकती है। While there is R equal to 0, then A is equal to, अब B की वैल्यू 2 है, 2Q plus 0, तो A जो बन गया that is 2Q और R की वैल्यू 1 है तो A is 2Q plus 1।
अब मैं इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ a इज इक्वल टू 2q इज व्हाट इवन। वाई? क्योंकि दैट इज इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, तो 2q क्या हो गया? इवन हो गया। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 जो आया वो इवन प्लस 1 हुआ। इवन प्लस 1 हुआ तो इज क्या बन गया? ऑड। दूसरा हम बोल सकते हैं कि दिस इज डायरेक्टली डिविजिबल बाय व्हाट? डिविजिबल बाय 2। अगर a इज इक्वल टू 2q है तो डिविजिबल बाय 2, और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 है तो हम बोल सकते हैं नॉन डिविजिबल बाय 2, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो दैट इज नॉन डिविजिबल बाय 2। क्लियर? तो ये जो बन गया वो अपना 2 का बन गया, ये जो बन गया अपना 1 का बन गया। वैसे ही b इज इक्वल टू 3, तो r इज इक्वल टू 0 हो सकता है, r इज इक्वल टू 1 हो सकता है, और r इज इक्वल टू 2 हो सकता है। अगर r इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू 3 है तो we will have 3q प्लस 0, so that is what? 3q। तो हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं 3q है मतलब डिविजिबल बाय व्हाट? डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड होगा। अगर b इक्वल टू 3 r इक्वल टू 0 देन डिविजिबल बाय व्हाट? 3। तो ये कंडीशंस देखते जाइए, डिविजिबल बाय जो होता है वो कब आता है? r इक्वल टू 0। अगर हम 2q की बात कर रहे हैं तो b इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 0। हम 3q की बात कर रहे हैं तो b इक्वल टू 3 r इक्वल टू 0। क्लियर? देन r इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 3 है, 3q प्लस 1। अगर 3q जो है वो डिविजिबल बाय 3 है और रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच रहा है तो दैट इज नॉन डिविजिबल बाय 3। दैट इज नॉन डिविजिबल बाय 3। जब 3 की बात आएगी तब इवन ऑड ऐसा नहीं पूछेंगे, क्योंकि एज वी नो 3 के टेबल के अंदर इवन भी आता है ऑड भी आता है। ठीक है? तो जब भी कभी 3 की बात करेंगे ऑड इवन के बारे में नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे? डिविजिबल बाय 3 और नॉट। इज दैट क्लियर? नाउ r इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो इट विल बिकम व्हाट? नॉन डिविजिबल बाय 3। रीजन? रिमाइंडर 2 है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है। नाउ ये हो गया 3 की बारी। अब मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि ये जो है वो एक एग्जांपल है अपने बुक का, ये जो है वो भी बुक का एक एग्जांपल है। अब मैं जब b इक्वल टू 4 लेता हूं, b इक्वल टू हाउ मच? 4। जब मैं b इक्वल टू 4 लेता हूं तो r की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेके लेस देन 4 यानी कि 3 तक। तो r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 3। r इक्वल टू 0 है तब जाके यहाँ पे बन जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, तो दैट इज 4q। अब हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू 4q जिसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, दैट मीन्स 2q की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन दैट इज इन अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट? 2। 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो इज विच नंबर? इवन नंबर। इज दैट क्लियर? सिमिलरली a इज इक्वल टू b इक्वल टू 4 डाल दिया और r इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अगर 4q इवन है तो 4q प्लस 1 इज व्हाट? ऑड नंबर। अगर इवन आता है तो हम बोल सकते हैं डिविजिबल बाय 2, लेकिन ऑड आता है तो नॉन डिविजिबल बाय 2। इज दैट क्लियर? सिमिलरली a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 के अंदर से मैं 2 कॉमन निकालूं तो 2q प्लस 1 बन गया। 2q प्लस 1 कुछ भी हो लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बिकम इवन नंबर। तो
तो यहाँ पे 4q plus 2 is what? Even number. Clear? और even number आया तो divisible by 2. A is equal to 4q plus 3. A is equal to 4q plus 3. जिसमें रिमाइंडर 3 बचा तो is odd number. या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं 4q is what? Even. और even के अंदर 3 odd ऐड किया तो even plus odd will become what? Odd number. Clear? Now furtherly we are going to discuss about the examples of book. Examples के बाद एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे. मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये वाले टेबल के अंदर 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा सही.